Hello children, from today onward we will start revision for your unit exam. So let's start. First I will explain again chapter first not for profit organization with the numerical question. After that we will revise chapter second partnership basic concept. So let's start. First, financial statements of not for profit organizations. Chapter map, financial statement of not for profit organization, in short form called NPOs. Not for profit organizations, meaning of NPO, different types of NPO, prize fund, endowment fund, annuity fund based accounting, restricted fund, unrestricted fund, loan fund, fixed fund, types of receipts, subscriptions, life membership fees, entrance fees, donations, legacies. These are the income sources of the organization. Sale of assets, investment, sale of scrap, preparation of final account. We will prepare as a final account opening balance sheet, receipt and payment account, income expenditure account, closing balance sheet. After that, calculation of subscription income from receipt side of receipt and payment account. Calculation of expenses from payment side of receipts and payment account. Calculation of cost of items consumed. Note, NPO are set up with the objective of welfare after society and not to earn profit. So it means is NPO only always do the work for the welfare of the society, not for the profit motive. Features separate legal entity, subscription from members, managed by people elected by its members, entrance fees. Not for profit organizations are set up with the objective of welfare of the society and not to earn profit. This is the definition of NPO. Financial statement of not for profit organizations, receipt and payment account. First we have prepared receipt and payment account. After that account is income and expenditure account, and last is balance sheet. Receipt and payment account is a real account and base is a cash book summary. Is a summary of cash and bank transaction during an accounting period, analyzed and classified under stable headings. Features of receipt and payment account. It is an asset account. Increase in asset is debited and decrease in credited. It record all cash receipts and payment. It is maintained on cash basis of accounting. No adjustment are made for outstanding expenses and prepaid, etc. It cover all the cash transaction of an accounting year. It start with the opening cash balance and also with the bank balance. It gives a brief idea about the cash position of an organization. Already we have prepared a cash book in your class 11. So same we will prepare receipt and payment account as like the cash and cash book. So limitation of receipt and payment account is it does not follow accrual basis of accounting. It does not show ability of the not for profit organization to meet its डे टू डे एक्सपेंसेस आउट ऑफ इट्स इनकम कि यहाँ पर हम जो है अपने एक्रुअल बेसिस की अकाउंटिंग को प्रिपेयर कर नहीं करेंगे. दूसरा कि यहाँ पर जो हमारे डेली के एक्सपेंसेस होंगे वो भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए जाएंगे. So first I will start meaning of NPO. Refer to all those organizations that serve the society with all its means without the intent of generating a profit, like hospitals, schools, culture, organization, etc. Fund based accounting. This is the fund based accounting. NPO use fund based accounting for ensuring that certain funds are used only for such specific purpose for which they have been contributed by the donor. इसका मतलब है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कि जैसा मैं आप लोगों को जो बच्चों ने वीडियो पहले नहीं देखी है या नहीं देखी थी उन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा एक उनके पास एक रिसोर्स है कि वो यहाँ पर फिर से अपनी वीडियोस को कंटिन्यू कर सकते हैं और फर्स्ट जो हमारे स्टार्ट हुए थे चैप्टर उनको एक बार फिर से वो रिवाइज कर सकते हैं जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखी है. चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब हमने क्लास 11th में जो हमने अकाउंट्स को प्रिपेयर करना सीखा था, ये जो अकाउंट्स हमने जाने थे वहाँ पर हमने जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए लाइक जनरल लेजर, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, BRS, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट, बैलेंस शीट. तो यहाँ पर जो भी हमने ये अकाउंट्स प्रिपेयर किए करने सीखे थे वहाँ वो सब अकाउंट्स सोल प्रोप्राइटर के लिए थे कि जहाँ पर एक सोल प्रोप्राइटर एक सिंगल ओनर है जो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है और वहाँ पर जो भी प्रॉफिट या लॉस ड्यूरिंग द ईयर होंगे वो सिंगल एक
ऑनर के कैपिटल अकाउंट में या तो प्लस हो जाएंगे, और अगर ओवर लायबिलिटीज होगी, ड्राइंग्स होंगी, तो वो सब माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी हमने अभी तक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब है कि ऐसा, यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट हम तब प्रिपेयर करते हैं जब हमारी फर्म या हमारा बिजनेस जो है वो मैन्युफैक्चर्ड बेस है। इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट को हम तभी प्रिपेयर करेंगे जब एक बिजनेस क्या होता है, मैन्युफैक्चर्ड होता है, जिसका प्रोडक्शन मतलब वो कोई गुड्स को प्रिपेयर कर रहा है। लेकिन अब जब हमने 12th क्लास में जो हमारा सिलेबस है, वहाँ पर हम 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करना सीखते हैं। फर्स्ट इज एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड इज पार्टनरशिप फर्म। थर्ड इज कंपनीज अकाउंट। यहाँ पर सबसे पहले नॉट फॉर प्रॉफिट की जितनी भी संस्थाएं हैं जो फंड पर, जो डोनेशन पर, जो चैरिटी पर काम करती हैं, उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं, उनके इनकम के सोर्स क्या है, सब्सक्रिप्शंस हैं, उसके बाद लेगेसीज हैं, उसके बाद मेंबरशिप फीस है, एंट्रेंस फीस है, इसके बाद चैरिटी है, बहुत सारे फंक्शंस शो कराती है। तो इन सब रिसोर्स के थ्रू उसके पास जो है सोर्सेज होते हैं उसके इनकम के, जिस इनकम को वो अपने वेलफेयर, सोसाइटी के जो वेलफेयर कर रही है, एक स्पेशल जो सर्विस प्रोवाइड जनरेट कर रही है, उस सर्विस को वो प्रोवाइड करती है लोगों को, जिसको फैसिलिटी को उसने प्रोवाइड किया हुआ है अपने 3 कैटेगरी में। फर्स्ट कि वहाँ पर कोई स्पेसिफिक, अगर कोई स्पेशल आदमी उसकी फैसिलिटी को, उसकी सर्विस को यूज़ करना चाहे तो वो भी कर सकता है। अगर कोई जनरल पब्लिक, कोई भी आम आदमी यूज़ करना चाहे तो वो भी कर सकता है। इसके बाद है हमारा पार्टनरशिप फर्म, कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई काम 2 या 2 से ज़्यादा मिलकर के आदमी करते हैं, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। थर्ड इज कंपनीज। कंपनी में जहाँ पर इसकी मिनिमम लिमिट है 7 और मैक्सिमम लिमिट होते हैं 50। अब इसके साथ एक और हमारा जो है नया एग्रीमेंट है, नया एक्ट है जो पास है 2013। तो अकॉर्डिंग टू द 2013 इट शुड बी 200, कि यहाँ पर कैन बी 200, कि यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट अगर किसी कंपनी में हो सकती है तो वो 200 भी हो सकती है। अब यहाँ पर जब पार्टनरशिप में हमने देखा तो पार्टनरशिप की जो मिनिमम जो लिमिट है वो है 2, मैक्सिमम लिमिट है 20। तो लेकिन अगर ये हमारा है 1932 के बाद एक और एक्ट अप्लाई हुआ 2013 में, जहाँ पर कहा गया कि अगर किसी फर्म में 20 से ज़्यादा लोग मिलकर के एज अ पार्टनर काम करना चाहें तो वहाँ पर क्या प्रोविज़न यूज़ होगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द 2013 ये प्रोविज़न है कि अगर वहाँ पर 20 से ज़्यादा लोग मिलकर के एज अ पार्टनरशिप में काम करना चाहें तो वहाँ पर वो काम कर सकते हैं। लेकिन जब 20 से ज़्यादा लिमिट हो जाएगी पार्टनर्स की तो वो अपने आप ही कंपनी एक्ट को फॉलो करेगा। इसका मतलब वहाँ पर जो भी रूल और रेगुलेशन अब अप्लाई होंगे फर्म में, वो सब रूल और रेगुलेशन कंपनी की तरह ही फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पर अब हम अनरिस्ट्रिक्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ फंड, इसलिए फंड बेस्ड अकाउंटिंग, कि जो भी हमारी फंड बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास अपनी कोई इनकम नहीं है, उसके पास जो पैसा है वो चैरिटी से, डोनेशन से, एंट्रेंस फीस से आता है। उसके बहुत सारे रीज़न है, कि कोई जनरल रीज़न से भी पैसा आपको ऐसे ही दे सकता है और आपसे नहीं पूछ रहा कि भाई आपको किस लिए चाहिए। स्पेसिफिक पर्पज़ का मतलब है कि आप किसी से पैसा मांग रहे हो कि भाई मुझे 10,000 दे दो, मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई मशीन खरीदनी है या कोई फर्नीचर खरीदना है, तो ये आपका स्पेसिफिक पर्पज़ है। अब आपको डोनर सिर्फ उस स्पेशल पर्पज़ के लिए ही पैसा कंट्रीब्यूट करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग इसलिए भी है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा एक साथ नहीं आता, धीरे धीरे पैसा आता है, जिसे हम फंडिंग कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फंड, की फंड के हमारे कितने टाइप्स हैं। फंड हैज़ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज रिस्ट्रिक्टेड फंड और जनरल फंड। रिस्ट्रिक्टेड फंड को ही स्पेशल फंड कहते हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, लाइक एंडोनमेंट फंड, एज अ एग्जाम्पल है गिफ्ट, एन्युटी फंड, रेगुलर पेमेंट, फिक्स एसेट फंड, बिल्डिंग, लाइब्रेरी, लोन फंड, जनरल लोन टू स्टाफ मेंबर, ग्रांट लोन टू स्टाफ मेंबर, प्राइज फंड, प्राइजेज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर देयर अचीवमेंट लाइक वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब है कि रिस्ट्रिक्टेड फंड में जैसे वहाँ पर फर्स्ट टाइप है एंडोमेंट फंड, का मतलब कि जहाँ पर आप किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हो तो वो आपका एंडोमेंट फंड है।
एन्युटी फंड का मतलब है रेगुलर पेमेंट, कि आप जब मतलब जो भी फंडिंग आपके पास है उसका आप एनुअली क्या है कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, किसी को दे रहे हो, पेमेंट्स कर रहे हो उसमें से, तो वो आपकी रेगुलर पेमेंट्स होती है। फिक्स एसेट्स का मतलब कि आपके पास जो भी स्पेशल फंड, जो आपको किसी ने सपोज ए ने आपको एक पंखा खरीदने के लिए पैसा दिया, तो ये आपके लिए स्पेशल फंड है। अब इस स्पेशल फंड को आप उसी फिक्स एसेट पर खर्च कर सकते हो जिसके लिए वो आपको दिया गया है। लोन फंड का मतलब है कि ऐसा पैसा जो आपके पास जमा है फर्म में, लेकिन उस पैसे से आप अपने किसी भी मेंबर को अगर वहाँ पर ज़रूरत है तो लोन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्राइज फंड, कि प्राइज फंड अगर कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो स्पोर्ट्स क्लब में जो भी पैसा उसको मिल रहा है तो किस लिए मिल रहा है, कि आपको जो गेम्स है वो ऑर्गेनाइज कराने हैं। अब जब हम गेम्स को ऑर्गेनाइज कराएंगे तो गेम्स को ऑर्गेनाइज कराने के साथ साथ हमें वहाँ पर खर्चे भी करने पड़ेंगे। जो भी हमारे पास प्लेयर्स आ रहे हैं, जब वो जीत जाएंगे या जो भी उनके अचीवमेंट्स होंगे उनके लिए हमें उनको प्राइज़ देने पड़ेंगे। तो जो पैसा आपने प्राइज़, उन सब प्राइजेस के लिए, उन सब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए फंड इकट्ठा किया है, उनको अब आप इन्हीं एक्टिविटीज़ पर खर्च कर सकते हो। नेक्स्ट इज अनरिस्ट्रिक्टेड फंड और जनरल फंड, कैन बी स्पेंड एनीवेयर, कि ये बहुत छोटी छोटी अमाउंट होंगी जिनको हम कहीं पर भी खर्च कर सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल पर्पस नहीं है। बुक्स ऑफ एनपीओ की हमें कौन सी बुक्स प्रिपेयर करनी है, कैश बुक, मेंबर्स रजिस्टर, रजिस्टर्स ऑफ एसेट, कि जब एक एनपीओ को अगर बुक्स मेंटेन करने की, प्रिपेयर करने की बात करें तो एक एनपीओ को कैश बुक बनाना है अपना, मेंबर्स रजिस्टर मेंटेन करना है और रजिस्टर ऑफ एसेट्स प्रिपेयर करना है। और ये तीनों जो रजिस्टर हैं, ये जो बुक्स हैं, ये मैंडेटरी है कि ये बनाने ही बनाने। काइंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ, कि अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए एनपीओ को कौन से स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। फर्स्ट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड इनकम एक्सपेंडिचर, थर्ड इज बैलेंस शीट। नेक्स्ट इज स्पेशल ट्रांजेक्शंस। अब यहाँ पर स्पेशल ट्रांजेक्शंस कैसी हैं। फर्स्ट सब्सक्रिप्शन, व्हेन द मेंबर ऑफ अ क्लब और सोसाइटी कंट्रीब्यूट अ पीरियोडिकल अमाउंट टू कीप देयर मेंबरशिप अलाइव, दिस अमाउंट इज नोन एज सब्सक्रिप्शन, इट इज ट्रीटेड एज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि सब्सक्रिप्शन एक ऐसी अमाउंट है और एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, ये एक अर्निंग का सोर्स है। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कह रहे हैं कि व्हेन द मेंबर ऑफ अ क्लब और सोसाइटी कंट्रीब्यूट अ पीरियोडिकल अमाउंट, कि जब किसी क्लब में जो मेंबर हैं या जो सोसाइटी में से जो लोग, समाज में से जो लोग आ रहे हैं वो उसके मेंबर बनना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट अ पीरियोडिकल अमाउंट टू कीप देयर मेंबरशिप अलाइव। अब वो वहाँ पर कह रहे हैं कि हम मेंबरशिप, मतलब यहाँ पर मेंबरशिप चाहते हैं कि हमें बार बार पैसा ना देना पड़े और हम एक ही बार में पैसा दें और हम इसके परमानेंट मेंबर बन जाए। तो ऐसा जो पैसा फर्म को मिल रहा है उसको वो सब्सक्रिप्शन कहते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब यहाँ पर जब हमारे पास ये सब्सक्रिप्शन से पैसे आते हैं तो हम उसको अपने एक इंडिविजुअल अकाउंट को प्रिपेयर करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अब आपको ये बताना है कि जो आपको सब्सक्रिप्शन, जो इनकम मिली है फर्म के लिए, उसमें से आप किस तरह से अपने एक्सपेंडिचर को करेंगे और टोटल आपके पास जो भी टोटल सब्सक्रिप्शंस है उसकी अमाउंट कितनी है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये एक अकाउंट है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर, कि जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ आपको करंट ईयर उसकी अमाउंट आएगी। एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये अमाउंट आपकी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में लिखी होगी, मतलब क्वेश्चन में लिखी होगी। ऐड करना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ऐड करना है फिर से सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन द बिगिनिंग, लेस करना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, लेस करना है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द एंड। इन सबको प्लस और माइनस करने के बाद अब हमारे पास जो रिमेन होगा, सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए इसको हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सब्सक्रिप्शन में हम किस तरह से आउटस्टैंडिंग देखेंगे, कि चेक कैसे करेंगे आउटस्टैंडिंग क्या है, एडवांस क्या है। अब जब हम सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन करते हैं तो सपोज यहाँ पर हमारा सेशन चल रहा है 2020, 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021, ठीक है। अब इससे पहले हमारे पास क्या था, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, ये सेशन था। अब यहाँ पर नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, 1 अप्रैल 2021, 31 मार्च 2022। अब हम इसको कहते हैं प्रीवियस ईयर,
ये हमारा पिछला साल है, प्रीवियस ईयर है। ये हमारा करंट ईयर है जिसमें हम काम कर रहे हैं, और ये हमारा एडवांस है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन में अब यहाँ पर जैसे फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो उसने कहा कि फॉर्मेट में सबसे पहले हमें देखना है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर, कि सपोज आपको करंट ईयर में यहाँ पर 50,000 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन इनकम मिल गई है। अब यहाँ पर उसने कहा अब आपको अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ऐड और माइनस करना है। ऐड करना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन द बिगिनिंग। ये सब चीज़ें क्वेश्चन में गिवन होती है। चलिए देख कैसे होती है। अब यहाँ पर जैसे हमने कहा कि अब हमने प्रीवियस, करंट और एडवांस इन तीनों चीज़ों को जान लिया कि अगर मैं इस करंट ईयर में काम कर रही हूँ, मेरा जो बैलेंस शीट है या जो मेरा वर्किंग टाइम है ये मेरा करंट ईयर में है। इसमें अगर मुझे सपोज जैसे हमने पहले भी किया है, अगर मुझे कोई प्रीवियस ईयर की अमाउंट मिलती है तो हम उसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या हो जाती है? प्लस। अब अगर 2021 और 22 के पैसे मुझे 20 में मिल गए थे तो ये हमारे लिए क्या बन गई? एडवांस, जिसे हम क्या कर देते हैं? माइनस। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ पर सपोज 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021, 31 मार्च 2022। अब यहाँ पर जैसे वो कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एडवांस एट द बिगिनिंग, ये हमें कैसे? चलिए, ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ये हमारा करंट ईयर है और ये हमारा एडवांस ईयर है। अब यहाँ पर इस टाइम को हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। क्या है ये? आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। ये है हमारा आउटस्टैंडिंग एट द एंड। इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन चलेगा। अब यहाँ पर ये क्या है हमारे लिए? एडवांस एट द बिगिनिंग। ये है हमारे लिए एडवांस एट द एंड। ठीक है, हो गया। चलिए अब एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं। समझ आ गया सब बच्चों को कि ये जब मैं इस साल में करंट ईयर में काम कर रही हूँ तो यहाँ पर ये मेरे लिए क्या है? प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है, और यहाँ पर ये मेरे लिए एडवांस है। तो जब हमारे पास सब्सक्रिप्शन का अगर क्वेश्चन है तो सब्सक्रिप्शन में हमें करना है कि सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को यूज़ करना है, जिसका फॉर्मेट मैंने अभी आपको दिखाया कि फॉर्मेट क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर, एज पर रिसिप्ट और पेमेंट, की जो भी रिसिप्ट और पेमेंट में सब्सक्रिप्शन आपको मिली है वो आपको दी गई है उसको आप लिखेंगे। अब यहाँ पर ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, देखो क्या है यहाँ पर? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड अगर होगा तो उसको हम प्लस करेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, जो पैसे आपको 31 मार्च 2020 को मिले होंगे वो आपको ऐड करने। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन द बिगिनिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस इन द बिगिनिंग, ये आपको मिला, ये आपको प्लस करना है। तो इसका मतलब इसको और इसको आपको प्लस करना है। अब लेस करना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसे हमें माइनस करना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट द एंड, सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस एट द एंड, और इन दोनों को हमें माइनस करना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज सब्सक्रिप्शन as per recipient payment account for the year ended on March 31st 2017, the subscription received were rupees 2,50,000. Additional information given is follow. ठीक है क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो ध्यान से कि यहाँ पर लिखा है कि एज पर रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के अकॉर्डिंग हमें पैसे मिले 2,50,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016 50,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 35,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2016 25,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2017 30,000 और सर्टेन। अब यहाँ पर हमने फॉर्मेट बनाया अपना जो हमारे सब्सक्रिप्शन का है कि सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो फॉर्मेट कह रहा है। फॉर्मेट में क्या लिखा है कि सब्सक्रिप्शन जो भी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से मिला पहले वो आएगी। तो हमें यहाँ पर क्या मिला है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से? हमें मिल रहा है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से 2,50,000 हमने लिख दिया। अब ऐड करना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग
ऑन 31st मार्च, क्या लिखा है यहाँ पर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ये है, तो यहाँ पर आ गया 35,000। अब ऐड करना सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 1 अप्रैल, रिसीव इन एडवांस 1 अप्रैल 25,000। अब हमने इसको भी प्लस कर दिया 25,000। नेक्स्ट इज 3,10,000। अब यहाँ पर 3,10,000 में से हमें माइनस करना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 50,000, 1 अप्रैल, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 31 मार्च 30,000, ये भी लेस हो गया और हमारे पास सब्सक्रिप्शन बचा 2,30,000। तो इस तरह से यहाँ पर हमें जब हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो ये जो हमारे पास 2,30,000 की सब्सक्रिप्शन अमाउंट बची है, इसको हम इनकम एक्सपेंडिचर में एज अ इनकम लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन 2,30,000। तो यहाँ पर आई होप सब बच्चों को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट। चलिए यहाँ पर देखते हैं, एक बार मैंने इसका वर्किंग नोट भी बनाया है। जैसे यहाँ पर मैं फिर से इसको समझा रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ वर्किंग नोट बनाया था इसका। एज पर रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन March 31st 2015 द सब्सक्रिप्शन रिसीवर 2,50,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2014 50,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पर हमने सेम, जब आप लोग फॉर्मेट को रखोगे और जो मैंने आपको पीछे वर्किंग बताई कि कैसे हमें आउटस्टैंडिंग और एडवांस को चेक करना है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपना, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट की हमें पहले से पता है कि हमारे जो अकाउंट्स के टाइप हैं वो हैं रियल, नॉमिनल और पर्सनल। अदर इनकम सोर्सेज ऑफ एनपीओ, ये एनपीओ के अदर जो इनकम सोर्सेज हैं वो क्या है, लाइफ मेंबरशिप फीस, लमसम, वंस फॉर ऑल। लमसम का मतलब है कि जैसे हम किसी पैसे को एक बार में जमा कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द लमसम अमाउंट। एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, लेगेसी मतलब विल, विल मतलब वसीयत। ठीक है, डोनेशंस स्पेशल और जनरल 2 टाइप्स की होती है। स्पेशल फंड लाइक स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड। अब यहाँ पर जो सोर्सेज हैं इनकम के, यहाँ पर ये बता रहा है कि जब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो इनकम आती है उसके ये सब सोर्स है कि इन सब सोर्सेज से पैसा इकट्ठा होता है और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी जो है सर्विस प्रोवाइड करती है लोगों के लिए। तो लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब होता है कि सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि भाई लाइफ टाइम के लिए मुझे अपना मेंबर बना लो, तो उन्होंने कहा ठीक है चलिए हम बना लेंगे। तो आप क्या करना है उसको, आपको उसके लिए कि आप या तो उसको एनुअली पेमेंट करते रहिए, ठीक है, हर साल पैसा देते रहिए और जब तक आप चाहें उसकी जो लाइफ मेंबरशिप फीस है वो फैसिलिटी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते कि रोज़ रोज़ पैसा कौन देगा, नहीं नहीं, तो आप एनुअली मतलब हर साल भी आप उसको पैसा दे सकते हैं जब तक आप उसकी मेंबरशिप चाहते हैं। फिर इसके बाद है एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, कि अगर हम जैसे स्कूल में अगर हमें एडमिशन चाहिए तो स्कूल में एडमिशन के लिए सबसे पहले हमें क्या कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन, एंट्रेंस। तो ये क्या है, ये भी इसका इनकम सोर्स है कि जो भी एडमिशन हो रहे हैं, जो भी एंट्रेंस हो रहा है उससे भी मेरे पास इनकम आ रही है। लेगेसी का मतलब है विल, कि अगर कोई आदमी किसी फर्म की क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन में अपनी विल जो है वो बना करके दे देता है और वो कहता है कि लाइफ टाइम के लिए मैं अब आपका एक लाइफ मेंबरशिप मैं ले चुका हूँ और मैं आपका परमानेंट मेंबर हूँ। तो जो मेरी विल है ये हमारी फर्म के ऊपर एक लायबिलिटी बन जाएगी और जब तक वो इंसान जिंदा रहेगा तब तक हमें उसकी देखभाल जो है वो करनी है। तो उसकी जो विल है वो हमारे पास एक लायबिलिटी रहेगी जब तक हम उसको यूज़ करेंगे। डोनेशन 2 टाइप्स की है, स्पेशल और जनरल। नेक्स्ट इज स्पेशल फंड होते हैं हमारे स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड, कि ऐसा पैसा जो हमें केवल उन्हीं पर्पज़ के लिए खर्च करना है जिसके लिए वो हमें मिला है। कैपिटल फंड, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल फंड, कि जब हमारे पास एसेट जो है वो कैश ज़्यादा हो गया, खर्चे कम हो गए, तो हमारे लिए क्या बन जाता है, कैपिटल फंड। अब हम इस पैसे को, जो पैसा बचता है उसको नेक्स्ट ईयर के लिए ट्रांसफर कर देते हैं और उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। सेल ऑफ ओल्ड, सेल ऑफ यूज स्पोर्ट्स मटेरियल, जो भी हम स्पोर्ट्स मटेरियल पुराना या ख़राब है हम उसको बेचेंगे तो भी हमारे पास पैसा आएगा। सेल ऑफ ओल्ड एसेट, जो भी पुरानी चीज़ें ख़राब हो चुकी है उनको हम सेल करेंगे तो भी पैसा आएगा। सेल ऑफ पीरियोडिकल्स का मतलब होता है कि जो भी हमारी मैगजीन्स हैं जैसे वीकली है या मंथली हैं, तो छोटी छोटी जो मैगजीन्स ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इशू करती रहती है, उनको हम बेच रहे हैं तो वो भी हमारी क्या है, सेल ऑफ इनकम है, सॉरी इनकम है हमारी। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम, इसका मतलब है कि ऐसा
पेमेंट जो इंस्टीट्यूशन में अपने रेगुलर एम्प्लॉय को पे किया जाता है। जैसे उसका पेमेंट टू एन आर्टिस्ट फॉर गिविंग परफॉर्मेंस एट अ क्लब, कि आपने कोई एक इवेंट कराया ऑर्गेनाइजेशन में, अब वहाँ पर उस इवेंट को कराने के बदले में जो आर्टिस्ट आया उसकी परफॉर्मेंस के लिए आपने उसको कुछ पेमेंट दी, जिसको हम हॉनोरेरियम कहते हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ग्रांट लाइक अ सिक्योरिटी। डिफरेंस हमारे पास है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनपीओ, जिन बच्चों ने पहले किया हुआ उनके पास ये सब थ्योरी अवेलेबल होगी। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर क्या होता है? कैपिटल नेचर इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि कैपिटल नेचर का इन्वेस्टमेंट वो होता है जो हम लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं। कैपिटल नेचर को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इन टू पार्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंसेस। कैपिटल रिसिप्ट वो होती हैं व्हेन वी कलेक्ट द फंड फ्रॉम द डोनर फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट, कि जब किसी डोनर ने हमें जो पैसा दिया है वो एक लॉन्ग टाइम के लिए दिया है, एक लॉन्ग टर्म की हमारे पास लायबिलिटी बन चुकी है, तो उसे हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। लाइक लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन, एंट्रेंस फीस एटसेट्रा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब कि अब हमें वो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए खर्च करना है, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हेन वी परचेज फिक्स एसेट लाइक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग और ये सब चीज़ें, कि जैसे अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम ये जो कैपिटल रिसिप्ट हमें मिली है इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करेंगे जब ये चीज़ों की हमारे पास डिमांड होगी। नेक्स्ट इज रेवेन्यू नेचर, इनकम फ्रॉम सेल और सर्विस फॉर शॉर्ट टाइम, कि जो भी पैसा हमें मिलता है हमारी सेल और सर्विस को बेचने से, मतलब यूज़ करने से, शॉर्ट टाइम के लिए। रेवेन्यू रिसिप्ट व्हेन द इनकम रिसीव फ्रॉम सेल और सर्विस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर व्हेन वी यूज द मनी फॉर पेमेंट लाइक audit fees, postage expenses are revenue expenses. Income and expenditure account, it is a nominal account prepared by a NPO. It is summary of income and expenditure account of the current year. जब हम रिसिप्ट और अकाउंट पेमेंट अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर अगर हमारे पास सब्सक्रिप्शन है तो सब्सक्रिप्शन केवल जो हमारे पास है आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और एडवांस ईयर, तो तीनों साल का सब्सक्रिप्शन ऐड करके हम अपने रिसिप्ट और पेमेंट में ऐड करके लिखेंगे। लेकिन जब हम इनकम और एक्सपेंडिचर को प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ पर केवल जो हमारे पास करंट ईयर का होता है सब्सक्रिप्शन अमाउंट वही प्लस होता है। उसके बाद अगर उससे रिलेटेड आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो वो एडजस्टमेंट आपकी होगी। आउटस्टैंडिंग है तो प्लस हो जाएगी, एडवांस है तो माइनस हो जाएगी। लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन 3 साल का क्वेश्चन में गिवन है इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के टाइम पर, तो वहाँ पर हम केवल जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वही ट्रांसफ़र करेंगे और कुछ नहीं होगा, ना ही प्लस करेंगे और ना ही माइनस करेंगे। सो डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये दोनों यहाँ पर इसके क्या है, डिफरेंसेस हैं। तो बच्चों आप ये सब जो भी आज आपको डिटेल्स बताई है थ्योरी, यू हैव रीड दीज थ्योरीज and prepare the subscription account and receipt and payment account. Next time I will explain the income or expenditure account. So take care and goodbye.